ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰੀਸਟਾਰਟ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੱਪੋਗੇ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਅਲਟ ਪਲੱਸ ਡਿਲੀਟ। ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਅਲਟ ਪਲੱਸ ਡਿਲੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਰੀਸਟਾਰਟ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰਮ ਬੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਲਡ ਬੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਵਾਰਮ ਬੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਰਮ ਬੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਬੂਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਲਡ ਬੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਟਾਰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸਟਾਰਟਸ ਇਫ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪਾਈ ਪਈ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਅਲਟ ਡਿਲੀਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? ਰੀਸਟਾਰਟ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਊਗੀ ਜੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਪੋਗੇ ਜੀ ਅਲਟ ਪਲੱਸ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ ਅਲਟ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F1। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਸਰਟ ਅੰਟਾਇਰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੰਸਰਟ ਅੰਟਾਇਰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਆ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਸਪਲਿਟ ਆ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਐਂਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਦੇ ਜੀ F7 ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਪੈਲ ਚੈੱਕ। ਜੇ F7 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਪਾ ਦੇ ਜੀ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F7, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਥਿਸੈਰਸ ਟੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਿਸੈਰਸ ਟੂਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਸਿਨੋਨਿਮ ਐਂਡ ਐਂਟੋਨਿਮ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਸਪੇਸ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸਪੇਸ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸਪੇਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਸੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸਪੇਸ ਦੱਬੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ? ਸਿਲੈਕਟ ਅੰਟਾਇਰ ਕਾਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲਮ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੋ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਸਪੇਸ ਨੱਪੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਸਿਲੈਕਟ ਅੰਟਾਇਰ ਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਸੈਮੀ ਕੋਲਮ। ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸੈਮੀ ਕੋਲਮ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਰੰਟ ਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਸੈਮੀ ਕੋਲਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸੁਪਰਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਪਰਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ।
ठीक है जी गल, ये नपोगे तो सब सुपरस्क्रिप्ट हो जूगी। सबस्क्रिप्ट की जी शॉर्टकट की है वो कि है जी कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है जी गल, ये सबस्क्रिप्ट की है। होर तुहानूं पेपर दे विच पुछ ले अल्ट प्लस इक्वल तो तुसीं कहोगे जी आटो सम, ठीक है। कंप्यूटर दीयां 5 जनरेशनां ने, ठीक है जी गल, पेपर च पुछ सकदा है। पहली जनरेशन च की यूज़ हुंदा सी, वैक्यूम ट्यूब्स हुंदियां सी। दूजी दे विच की होण लग गया, ट्रांजिस्टर्स। तीजी दे विच IC चिप्स यूज़ होण लग गए। चौथी दे विच माइक्रो प्रोसैसर आ गए। ते पंजवीं दे विच की आ गया जी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के फाउंडर पेपर च पुछ लैण तां कौन सीगे जी, जॉन मकार्थे, ठीक है जी गल, भुलना नहीं हैगा, ठीक है जी। तो होर पेपर च पुछ सकते हैं कि जी सैकेंड जनरेशन सी जिहदे ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाण लगे सीगे, मतलब ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ कंप्यूटर ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ एग्जाम्पल ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ जी IBM 1401 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ एग्जाम्पल ਆ, ठीक है। सैकेंड जनरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ लैंग्वेज यूज़ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ जी, फॉर्ट्रैन ते कबोल, ठीक है। फॉर्ट्रैन की पेपर च फुल फॉर्म पुछ लैण तो तुसीं कहोगे जी फार्मूला ट्रांसलेशन। कबोल की तुसीं कह दोगे जी कॉमन बिजनस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है जी। फॉर्ट्रैन का पेपर के फुल तुहाडा फाउंडर पुछ लैण तो तुसीं कहोगे जी जॉन ब्रक्स, ठीक है। कबोल का पुछ लैण तो तुसीं कह दोगे जी ग्रेस होपर, ठीक है। सो कई बच्चे की है जी बोर ना होया करो, ठीक है। ये थोड़ा ही समा गा, इदू बाद तुहाडे की है जी जो 10 लैक्चर लंघ गए ना तुहाडे आटोमैटिकली चीज़ां दिमाग दे विच फिट हो जाणगियां तो तुहानूं लगूगा भी यार बहुत वधिया मतलब नज़ारा आ रहा पढ़न दे विच। सो बोर नहीं होना हैगा, जिहड़ी चीज़ नहीं पता उहनूं लिखिया करो, ठीक है। आपां रिवीजन ही करनी है, होर कुछ नहीं करना हैगा, ठीक है जी गल। तो बस इन्नी गल याद रखते हैं, अपना सैशन लंबा हो जाऊगा। अनसोलीकेटेड कमर्शियल ईमेल इज़ कॉमनली नोन एज, तो यदा की आ जाऊगा जी आंसर स्पैम, ठीक है जी गल। तो ध्यान रखियो जो यह जिहा क्वेश्चन देसे ये वन लाइनर है, तुहानूं याद करना पऊगा जी अनसोलीसाइटेड कमर्शियल ईमेल इज़ कॉमनली नोन एज स्पैम कहा जाता है जी, ठीक है जी गल। ईमेल की पेपर फुल फॉर्म पुछ लैण तुसीं कह दोगे जी इलैक्ट्रॉनिक मेल हुंदी है। ईमेल के जिहड़े फाउंडर ने कौन ने जी, रे टॉमिलसन ने, ठीक है जी गल। फस्ट फ्री मेल किहड़ी सीगी, तुसीं कहोगे जी हॉटमेल सीगी, ठीक है, जिहड़ी कि किहदे द्वारा जी, सबीर भाटिया द्वारा, ठीक है जी गल। ये गल नहीं भुलनी हैगी, ठीक है। एक सोनू होर पेपर के पुछ लैण HTML की फुल फॉर्म पुछ लैण तो तुसीं कहोगे जी हाइपर टैक्सट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है जी गल। एक HTTPS की पुछ लैण तो तुसीं कह दोगे हाइपर टैक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S का पुछ लैंदे हैं तो S का की मतलब है जी सिक्योर है, ठीक है। तो इन्नी गल याद रखनी है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। Which command will you use in PowerPoint if you need to change the color of different ऑब्जैक्ट्स विदाउट चेंजिंग कंटेंट? याद रखना पऊगा कलर स्कीम इहदा की आ जाऊगा जी, सही आंसर आ जाऊगा, ठीक है जी गल। तो ध्यान रखियो कलर स्कीम इहदा सही आंसर आ जाऊगा, ठीक है। सो मैं थोड़ियां जिहियां शॉर्टकट मतलब होर दस देना, शॉर्टकट नहीं फुल फॉर्म्स दस देना। पेपर के एक फुल फॉर्म से भी 2 या 1 क्वेश्चन पक्का आउंदा ही आउंदा है, 2 क्वेश्चन तुहाडे शॉर्टकट कीते आउंदे ने, ठीक है। 1 या 2 तुहाडे फाउंडर आ जाते हैं, ठीक है जी गल। तो इस तरह कंप्यूटर सारा कवर करते हैं जी। वो NIC की पेपर फुल फॉर्म पुछ लैण तुसीं कह दोगे जी नैटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। NIC की फुल फॉर्म पुछ लैण पेपर के, ठीक है जी। होर तुहानूं पेपर के पुछ लैणगे कि तुसीं दसो ISDN की फुल फॉर्म दसो, तुसीं कह दोगे जी इंटीग्रेटेड, ठीक है जी, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नैटवर्क, ठीक है। ISDN की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो चलते चलते क्वेश्चनों के मैं होर भी करा दूँगा, जिमें तुहानूं मैं होर दस सकदा जी। जिमें तुहानूं पेपर के पुछ लैण कि वाईफाई की फुल फॉर्म दसो, तुसीं कह दोगे जी वायरलैस। ये पुछदा बच्चों पेपर किते एवें ना जाने इन्हों। वायरलैस फिडैलिटी, ठीक है, वाईफाई की है। जे वाई मैक्स की पुछ लैण तो तुसीं कहोगे जी वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सैस, ठीक है जी गल। होर पेपर के तुहानूं पुछ लैण जिमें कि DSL की, तुसीं कह दोगे जी डिजिटल सबसक्राइबर लाइन, ठीक है। SMS की तुसीं मैनूं की है जी फुल फॉर्म दसनी है कमेंट बॉक्स के, ठीक है जी, SMS की, ठीक है जी गल। तो एक तुसीं मैनूं दसनी है जी सिम की, ठीक है। तो 2 की दसनी है जी SMS की, तो सिम की फुल फॉर्म दसनी है। तो यदा डी ऑप्शन है जी वो की है जी सही आंसर आ जाऊगा।
इन MS वर्ड यू कैन डिटेक्ट स्पैलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय प्रैसिंग द की। तुसी ग्रामर मतलब ਜਾਂ स्पैलिंग चैक करने ने तो ਉਹਦੇ वास्ते शॉर्टकट की लाओगे तो ਕਿਹੜੀ की लाओगे शॉर्टकट जी तो शिफ्ट प्लस F7 ना ला दिओ गलती कर जाओगे F7 लाओगे। पिछले लैक्चरां तो रिपीट कर रहे हैं F7 की है जी स्पैल चैक वास्ते है ठीक है। जे शिफ्ट पा दे नाल तो तुसी कहोगे जी काहदे वास्ते है थिसैरस टूल वास्ते। थिसैरस टूल काहदे वास्ते वरतिया जांदा सिनोनिम ते एंटोनिम वास्ते ठीक है जी। गल नहीं भुलना हैगा। होर आपां की याद कर सकते हैं जी सोनू पेपर दे विच पुछ लैणगे कि शिफ्ट प्लस F5 शिफ्ट प्लस F5 रिपीट करदा दो याद रखने जी तुसी शिफ्ट प्लस F5 ते शिफ्ट प्लस F3 ठीक है। शिफ्ट प्लस F5 काहदे लई वरतिया जांदा है तो तुसी कहोगे जी ओपन द सर्च बॉक्स ओपन द सर्च बॉक्स ठीक है। मैं मतलब काली काली दे विच पूरे स्पैलिंग लिखे जाते तुसी कापी दे उत्ते नोट कर लिया करो। शिफ्ट प्लस F3 काहदे वास्ते हुंदा जी ओपन द फॉर्मूला विंडो ठीक है। ये दोनों इकट्ठे याद रखने ठीक है। पेयर बना के याद कर लिया करो तो ये पक्का जी तुसी कदे नहीं भुलोगे। F7 की है जी, इसका सही आंसर है ठीक है। तो चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। विच नैटवर्क सिक्योरिटी फीचर प्रिवेंट्स यूजर ऑन आ नैटवर्क फ्रॉम यूजिंग प्रोग्राम एंड इनफॉर्मेशन दैट आर अनऑथराइज्ड। जी अनऑथराइज्ड चीज़ है मैं तुहानूं पहलां भी दस चुकिया जी। तो जो भी यह क्वेश्चन दिसे अनऑथराइज्ड लिखा हो तो तकरीबन तुसीं फायरवॉल ते ला सकते हो ठीक है जी। गल मतलब सानूं प्रोटैक्ट करदा कंप्यूटर नूं की है जी अनऑथराइज्ड अटैक होंदे ने जिहड़े कंप्यूटर दे उत्ते जिवें आपां कह दईए वायरस वगैरह ठीक है जी। वो तो प्रोटैक्ट करदा है कौन फायरवॉल ठीक है जी। तो सोनू पेपर दे विच एक चीज़ पुछ सकदा है जी तो तुसीं असैंबलर सीधा आ जाता जी ठीक है। बस सीधा याद रखना तुहानूं क्वेश्चन ही यही बनता है असैंबलर की करता जी। तो तुसीं कहोगे जी असैंबली लैंगुएज नूं ट्रांसलेट करता है कन्वर्ट करता काहदे च टू मशीन लैंगुएज दे विच। मशीन लैंगुएज दे विच की करता जी कन्वर्ट करता है असैंबलर किनूं असैंबली लैंगुएज नूं मशीन लैंगुएज दे विच ठीक है जी। एक तुसीं भुलना नहीं हैगा जी असैंबलर हो गया ये तुहाडे याद हो गया। एक हुंदा जी कंपाइलर एक हुंदा जी इंटरप्रेटर। सोनू मैं इसे तरह ही रिवीजन करा दूंगा ठीक है। कई टीचर की करते हैं वो सिर्फ तो सिर्फ ये क्वेश्चन बनाते हैं भी कंपाइलर की काम करता इंटरप्रेटर की करता। आप क्वेश्चन भी बनावांगे तो नाल दी नाल मतलब जो भी कोई मतलब आपां नूं लगूगा भी यार ये काम करने की लोड़ है तो नाल दी नाल आपां की है जी वो मतलब की है रिवीजन करी जावांगे। कंपाइलर का की काम हुंदा जी जिहड़ा मतलब की हुंदा ट्रांसलेट करता है जी कंपाइलर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड कंपाइलर का की काम होंदा रिपीट करदा जी। आप इत्थे खुला लिखते हैं जी कंपाइलर ठीक है। कंपाइलर का की काम होंदा जी ट्रांसलेट्स सुनो फिर इस ते मैं क्वेश्चन भी दसूँगा ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड रिटन इन हाई लैवल लैंगुएज टू ऑब्जेक्ट कोड ठीक है जी। गल तो जिहड़ा कंपाइलर का काम की हुंदा जी ठीक है वो की करदा ट्रांसलेट करदा सोर्स कोड जिहड़ा लिखिया हुंदा जी काह च हाई लैवल लैंगुएज तो ऑब्जेक्ट कोड दे विच तब्दील करता है। इस तरह ही इहदा ही काम हुंदा जी इंटरप्रेटर का ठीक है जी। गल बस कंपाइलर तो इंटरप्रेटर च फर्क की है क्वेश्चन ये बन जाता है ठीक है। कंपाइलर है जिहड़ा वो सारे प्रोग्राम नूं इकट्ठा करता है कन्वर्ट ठीक है। बस देसी भाषा याद रखोगे। इंटरप्रेटर की करता जी लाइन बाय लाइन करता है ठीक है। कन्वर्ट इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। कंपाइलर है जिहड़ा वो की करता जी इकट्ठा कर दिंदा ठीक है जी। गल तो याद रखोगे फायर वाले का की आ जाऊगा जी सही आंसर आ जाऊगा ठीक है। एक मैं तुहानूं शॉर्टकट की पहलां भी दस चुके हैं कॉपीराइट की रिपीट क्यों कराउणा मैं क्योंकि ये कॉपीराइट वाला जिहड़ा पक्का आ जाता है जी अल्ट कंट्रोल प्लस सी काहदे वास्ते है जी कॉपीराइट वास्ते आ ठीक है। भुलना नहीं हैगा ठीक है जी। एक तुहानूं बस ठीक है इन्ने की याद रख लो बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन आ डॉकूमेंट इज़ नॉट विजिबल इन बैकग्राउंड जिहड़े कलर या इफेक्ट लगे होंदे ने जो अप्लाइड करते हैं डॉकूमेंट ते तो किहड़े प्रीव्यू दे विच वो जिहड़े नहीं दिखते हैगे। तो इहदा जिहड़ा सही आंसर आऊगा वो क्या आऊगा जी प्रिंट प्रीव्यू आऊगा डी ऑप्शन इहदा की है जी सही आंसर आऊगा ठीक है जी। होर आपां की याद रख सकते हैं सोनू पेपर दे विच VSNL आ जे बी बस वाली आ जे BSNL
ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜੇ MTNL, क्योंकि पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ पक्का आउंदा ही आउंदा है ਤਾਂ ਬੱਚੇ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। V ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ जी विदेश आऊगा, संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, बाकी तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही ਹੁੰਦਾ है। BSNL, ठीक है, ਇਹਦੀ फुल फॉर्म की है जी, तो ਤੁਸੀਂ कह दोगे जी भारत संचार निगम लिमिटेड। MTNL ਦਾ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣ महानगर ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਡ, ठीक है जी गल। WLL आ जाए पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੇ कि WLL ਦੀ फुल फॉर्म दसो, तो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ जी वायरलैस लोकल लूप, ठीक है। तो जे ਤੁਹਾਨੂੰ BCC ਦੀ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਇਹ ਵੀ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ जी BCC, ਇੱਥੇ देखो BCC, तो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ जी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है जी गल। ISDN दी पुछ ले तो तुसी कहोगे जी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नैटवर्क, ठीक है। तो सोनू पेपर च पुछ ले वाईफाई दी, तुसी कहोगे वायरलैस फिडेलिटी, ठीक है जी गल। होर की है जी, एक क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पाਉਣਾ जी कि पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਪਹਿਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਲਿਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਫॉर ਮੈਨੂਅਲ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ। दो तरह के आपां की है जी पढ़नी है शॉर्टकट की, एक इंसर्ट लाइन ब्रेक, क्योंकि पेपर के दोनों पुछ लैंदा तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एक होंदी है जी इंसर्ट लाइन ब्रेक, ठीक है, एक होंदा जी मैनुअल लाइन ब्रेक, ठीक है जी गल। मैनुअल लाइन ब्रेक वास्ते किहड़ी शॉर्टकट की है, तुसीं कहोगे जी शिफ्ट प्लस एंटर। इंसर्ट लाइन ब्रेक वास्ते किहड़ी है जी कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। तो आपां नूं किहड़ी पुछी है जी मैनुअल लाइन ब्रेक, तो इहदी किहड़ी आ जी शिफ्ट प्लस एंटर। ध्यान रखोगे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये। CAD दी पेपर दे विच कई बार फुल फॉर्म पुछ लैंदा, तुसीं कह दोगे जी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है जी गल। सोनू पेपर च ARPANET दी पुछ ले, मैं पूरी नहीं लिखूँगा हुण, ARPANET दी बोल के दसूँगा, ठीक है जी। तो तुसीं किहड़ी लिखनी है जी ARPANET दी एडवांस रिसर्च प्रोजैक्ट एजेंसी नैटवर्क। रिपीट कर देना है, एडवांस रिसर्च प्रोजैक्ट एजेंसी नैटवर्क ARPANET दी फुल फॉर्म है। थोड़े जिहे आपां फाउंडर याद कर लैंदे आ। तुहानूं लाइनक्स दा फुल फाउंडर पुछ ले, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैगा ना जी, तो लाइनक्स दा कौन है जी, तो तुसीं कहोगे जी लाइनस टॉरवर्ड्स, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, ठीक है। होर आपां नूं की पुछ सकदा है वो, इंटरनेट इज़ कॉल्ड। पहली गल तो तुहानूं इंटरनेट के फुल फाउंडर पता होना चाहिए, कौन ने जी विंट सर्फ ने, ठीक है जी। इंटरनेट इज़ कॉल्ड पेपर च कई बार पेपर च क्वेश्चन पुछ ले इंटरनेट इज़ कॉल्ड, तो ऑप्शन दे विच पिया होऊगा जी इनफॉर्मेशन ऑफ हाईवे, ठीक है जी गल। इनफॉर्मेशन ऑफ हाईवे कहा जाता कि इंटरनेट नूं, ठीक है। तो कुछ कु होर पुछ ले, जिवें तुहानूं कह दे इन्हां चों दसो किहड़ा वैब ब्राउज़र नहीं हैगा, ठीक है। तो तुसीं किवें लाउणा जी, तुहानूं पता होना चाहिए ने किहड़े किहड़े वैब ब्राउज़र ने। तो नैटस्केप, बच्चों ये क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर दे विच, नैटस्केप नैवीगेटर, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी वैब ब्राउज़र है जी, ठीक है। तो मोज़रिला फायरफॉक्स ये भी की है जी वैब ब्राउज़र आ, ठीक है। सफारी, ठीक है जी, ये भी हैगा। अपेरा, ठीक है, ये भी हैगा, ठीक है। तो याद रखोगे सारे की ने जी वैब ब्राउज़र ने, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होर आ जाता, स्टार पा के लिख लो, इन्हों की बेकदरी ना करो क्वेश्चनों की, जी मैं एक्सट्रा दे विच दसदा हुन्ना जी। तो मतलब इन्हों लिख लिया करो कापी के उत्ते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, पक्का तुहानूं पेपर दे विच इहदा मतलब की हैगा, तुसीं देखोगे इन्हों, ठीक है जी गल। तो एक क्वेश्चन लिख लो जी ईच लोकेशन, मेरे क्वेश्चन तो क्वेश्चन याद आई जाता जी, ईच लोकेशन हैज़ यूनीक एड्रैस। ऑप्शन च इत्थे खाली थां पा दूगा, तो तुसीं भरोगे ऑप्शन च पिया होऊगा URL, ठीक है जी गल। URL की फुल फॉर्म पेपर च पुछ लैण यूनीफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनीफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ठीक है जी गल। एक सर्च इंजन कई बार पेपर च पुछ लैंदे ने
कि सर्च इंजन दसो इन्हां चों किहड़ा है जी, तो तुसीं कहोगे जी गूगल सर्च इंजन है, बिल्कुल सर्च इंजन है। MSN ये भी सर्च इंजन है, ठीक है। लाइकोज ये भी सर्च इंजन है। याहू ये भी सर्च इंजन है, ठीक है जी। खोज, ठीक है, ये भी सर्च इंजन है। तो साइबर 411 ये भी सर्च इंजन है, ठीक है। रिपीट करदा बच्चों, पेपर 'च ना क्वेश्चन बहुत तरीके नाल बनाउंदा, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ईजी है, ठीक है। इन्हां विचों दसो कहंदा किहड़ा सर्च इंजन नहीं हैगा, इस तरह क्वेश्चन पा दूगा। तो आपां सर्च इंजन तुहानूं मैं दस दिना किहड़े किहड़े हैगे ने। तो रिपीट फिर कर दिना जी, गूगल हैगा सर्च इंजन है, क्योंकि की करदे हो सर्च करदे हो, ठीक है जी। गल तुहाडा MSN ये बच्चों ने ना सुने नहीं होने, पर पेपर 'च दिख जाते हैं, ठीक है जी। MSN हैगा जी सर्च इंजन। लाइकोज ये भी हैगा जी, ठीक है। याहू है, ठीक है। तो तुहाडा खोज है, ठीक है जी। तो एक हैगा जी साइबर 411, ठीक है जी। साइबर 411 ते स्टार ला के लिख लो जी, मैगा सर्च इंजन है जी, ये मैगा सर्च इंजन है। एक मैनूं क्वेश्चन होर याद आ गया, चलो मैं अगली क्वेश्चन दे विच डिस्कस करूँगा उहनूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ सर्च इंजन, आ देखो आ गया जी, ठीक है। विंग हैगा जी, गूगल हैगा जी, याहू हैगा, मैं पहले दस चुक्या। आउटलुक नहीं हैगा, ठीक है जी। गल तो तुहानूं थोड़ा जिहा मैं दसदा जी, पहली गल तो इसदा आंसर क्या होऊगा, फोर्थ ऑप्शन आऊगा। एक OSI मॉडल पढ़िया होऊगा सारिਆਂ ने, ठीक है, जिहदी फुल फॉर्म पेपर 'च पुछ लैंदे आ, ओपन सिस्टम इंटर कनैक्शन, ये फुल फॉर्म है। OSI मॉडल दी कितनी लेयर होंदियां ने जी, 7 लेयर होंदियां ने जी, ठीक है जी। गल ये डाटे नूं ट्रांसमिट करदा जी, ठीक है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये भी तुहानूं पता होनी चाहिए है गल, ठीक है। इनू होर किहड़े नाम नाल जाणिया जांदा जी, इनू रैफरेंस मॉडल भी कहा जाता है, कि इनू OSI मॉडल नूं, ठीक है जी, रैफरेंस मॉडल भी कहा जाता। 7 लेयर होंदियां ने, ठीक है जी। ट्रिक मैं तुहानूं पहलां भी दस चुक्या, अज भी दस दिना जी। एक ट्रिक याद रखनी है जी, आंध्रा प्रदेश, आंध्रा रिपीट करदा जी, ध्यान नाल लिख लो, क्योंकि इत्थे बड्डी बहुत हो जूगी। तो तुसीं कापी ते लिख लो, मैं लिखदा नहीं हैगा। आंध्रा प्रदेश से ट्रेन निकली, दिल्ली पहुँची, ठीक है। रिपीट कर देना है, आंध्रा प्रदेश से ट्रेन निकली, दिल्ली पहुँची। आपां ट्रिक किवें इंप्लीमेंट करांगे, तो 7 लेयरां दे विच इंप्लीमेंट करांगे इनू। आंध्रा तो की बन जूगा जी, एप्लीकेशन लेयर बन जूगा, OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर बन जूगा, ठीक है। सारियां सीरीज़ के अकॉर्डिंग ने, ठीक है। उदों बाद की है जी, आंध्रा प्रदेश तो की बन जूगा, प्रदेश तो बन जूगा जी प्रैजेंटेशन लेयर बन जूगा, ठीक है। उस तो बाद की है जी, से आंध्रा प्रदेश से तो बन जूगा जी सैशन लेयर, ठीक है। ट्रेन तो बन जूगा जी ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। निकली तो बन जूगा जी नैटवर्क लेयर, ठीक है। दिल्ली तो बन जूगा जी डाटा लिंक लेयर, पहुँची तो बन जूगा जी फिजिकल लेयर। तो 7 लेयर ये तुसीं याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। गल नैटवर्क लेयर दे विच की काम करदा है, पेपर दे विच पुछ लैंदे ने किहड़ी चीज़ नैटवर्क लेयर दे विच काम करदी है, तो राउटर करदा है, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है जी, राउटर किहड़ी लेयर 'च काम करदा है, नैटवर्क लेयर 'च काम करदा जी। डाटा लिंक लेयर दे विच 2 लेयरां काम करदियां, किहड़ियां जी, एक MAC, एक LLC, ठीक है जी। गल तो दोनों की फुल फॉर्म तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दसनी है, ठीक है। तो इन्नी क इन्फॉर्मेशन इहदे नाल संबंधित याद रखियो। फोर्थ ऑप्शन इहदा की आ जूगा, क्वेश्चन का सही आंसर आ जूगा। इन MS Excel विच वन डिनोटेड आ रेंज फ्रॉम B3 थ्रू E8। देखो पहली गल तो B3 ਇਹਦਾ मतलब की है, B मतलब कॉलम, कॉलम ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ रिप्रजेंट करते हैं ਆਪਾਂ, टैक्सट ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ हैं, तो 3 ਨੂੰ रो ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ रिप्रजेंट करते हैं, देसी भाषा कहती मैथ वाले अखर ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ क्वेश्चन की पूछा होया जी, तुसी B3 to B3 to E8 तक मतलब की करना है, इनू लिखना है, ठीक है। तो किमें लिखो, किहड़ा ऑपरेटर यूज़ करोगे, तो 2 डॉटां ला के रिप्रजेंट करोगे। तो ध्यान रखियो किहड़ी सही फिट पैंदी है, जिस तो दूजी ऑप्शन जी वो फिट पैंदी है, ठीक है जी। गल एक्सल दे विच टोटल रोज़ पेपर 'च पुछ लैण, तुसीं कह दोगे जी 10 48 576, कॉलम पुछ लैण 16 384, ठीक है। भुलना नहीं हैगा। लास्ट सैल का एड्रैस की हुंदा XFD 10 48 576 है, ठीक है जी। गल टोटल वर्कशीट्स ने जिहड़ियां, टोटल नहीं कह सकते, मतलब जिहड़ी ना डिस्पले एक्सल खोल रखिया, मान लो तुसीं इत्थे ना बाय डिफॉल्ट कितनियां वर्कशीट्स हुंदियां ने, 3 हुंदियां ने, ठीक है जी। गल ये भी नहीं तुसीं भुलना हैगा, ठीक है। इन्नियां गल्लां तुसीं इहदे नाल संबंधित याद रख लिओ। तो दूजी ऑप्शन इहदी फिट सही क्वेश्चन है जी। स्पैशल इफैक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन प्रैजेंटेशन आर नोन एज, मतलब तुहानूं देसी भाषा समझावां, तुसीं ना स्लाइडां बना लिओ। स्लाइडां कंप्यूटर ते बनाउणे आपां छोटे हुंदे 10वीं क्लास 'च आपां नूं जो लैब दे विच लैके जांदे सी ना, आपां स्लाइडां बना लैंदे सी, कदे अपना नाम लिख लैंदे सी, कदे झौंपड़ी जी लै लैंदे सी, कदे कुछ मतलब फोटोआं जियां कदे इधरों निकल जांदी, जो स्लाइड शो करदे सी आपां, कदे इधरों निकल जांदी, कदे उत्तों जा जांदी, कदे ऐ मतलब आपदे मतलब विजन जे दिखाउंदी सी, कदे किधरों किधरों। उहनूं की कह दिंदे ने देसी भाषा, वो हुंदी है जी ट्रांजिशन,
पहली ऑप्शन की है जी ਇਹਦੀ सही आंसर आ जाऊगा। ठीक है जी गल। जे तुसी ध्यान नाल क्वेश्चन सुन लो जी, स्टार्ट स्लाइड शो वास्ते शॉर्टकट पावर पॉइंट की दे विच की हुंदी है जी F5 हुंदी है। पर यही F5 नूं जे तुसी डैस्कटॉप ते खड़े हो तो की काहदे वास्ते वरत्या जांदा है, रिफ्रैश करन वास्ते वरत्या जांदा है। ठीक है जी गल। पेपर 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ। ਦੇਖਿਓ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਆਰ स्पैसिफिक, देसी भाषा भी समझा दूंगा, स्पैसिफिक नेम्स यूज्ड इन URL टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर वैब पेजेस। मतलब जिमें तुसी की करना गा, कोई पेज नूं लभना, ਉਹਦੇ ना मतलब प्रॉपर डोमेन नेम होंदे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाता भी यार हाँ ये आह है। जिमें ਤੁਹਾਨੂੰ मैं फॉर एग्जाम्पल ही समझावां। ठीक है, जिमें ਤੁਹਾਨੂੰ कहता जी HTTP, जो तुसी गूगल क्रोम खोलते हो ना, उस बाद भरते हो कुछ उत्थे ना आई पे उपर देखियो HTTP। ठीक है, www.hotmail.com समथिंग आई लिखा पे। ठीक है जी गल। तो ये तुहानूं पेपर च पूछ ले डोमेन नेम किहड़ा, तुसीं कह दोगे जी hotmail.com की है जी डोमेन नेम है। ठीक है ना गल, समझ गए गल। तो हुण HTTP ये पिया, तो ये फुल फॉर्म पेपर च पूछ लैंदा हाइपर टैक्सट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, www वर्ल्ड वाइड वैब, टिम बर्नर ली ये फाउंडर ने। ठीक है, तो हुण मैं तुहानूं थोड़ा जिहा इहदियां मतलब की हैगा डोमेन नेम दसदा। जिवें तुहानूं देखो .गवर्नमेंट पिछे लिखिया हुंदा ना, तो काहदे वास्ते हुंदा जी, ये सानूं पता लग जांदा भी गवर्नमेंट वास्ते है। ठीक है, .in का मतलब की हुंदा जी इंडिया वास्ते है। ठीक है, .com काहदे वास्ते हुंदा जी, कमर्शियल बिजनेस वास्ते। ठीक है, तो तुहानूं एक मिलटरी का पुछ लैंदे ने .mil, तो मिलटरी वास्ते। ठीक है जी गल। तो ये सारे की ने डोमेन नेम ने। ठीक है, तो याद रखियो पहली ऑप्शन इसकी की है जी, सही आंसर है। विच फंक्शन विल यूज टू एंटर करंट टाइम इन वर्कशीट सैल। करंट टाइम तुसी किवें दसोगे, हुण दा दसोगे ना, उन्होंने इंग्लिश च कहते हैं नाउ, तो किहड़ा आऊगा जी, नाउ आऊगा। ठीक है जी गल। तो जे तुहानूं करंट डेट पुछ ले, करंट डेट वास्ते की हुंदा जी, तो तुसी कहोगे जी टूडे। ठीक है, भुलना नहीं है। टाइम वास्ते नाउ है, अज की डेट वास्ते करंट डेट वास्ते अज की वास्ते की यूज़ करोगे जी, टूडे। ठीक है ना गल। तो ये गल नहीं भुलनी हैगी। ठीक है जी। कॉपीराइट वास्ते किहड़ा सिंबल वरत्या जांदा है, सॉरी शॉर्टकट की वरत्या जांदा जी, Alt Ctrl + C। ठीक है जी गल, नहीं भुलना हैगा। ये गल्लां तुसीं याद ये रखणियां ने। तो इत्थे आपां अपने सैशन का अंत करते हैं। जेकर वीडियो वधिया लगदी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो अपने फ्रेंड सर्कल दे विच। ठीक है, तो जे मैथड वधिया लगदा तो वो कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस्सिया करो भी आपां इस तरह ही इस चीज़ नूं कंटीन्यू रखिया करिए। क्योंकि कई बच्चों की थिंकिंग ये हुंदी है भी मतलब कि सिंपल सानूं क्वेश्चन दसो तो उसदा आंसर दबाओ। सो ये तो मतलब कि जे 10 क्वेश्चन आ गए तो तुसीं 2 सही करके आओगे जे पेपर थोड़ा जिहा टफ आ गया। क्योंकि जे रिवीजन मतलब जिहड़ियां मैं चीज़ां तुहानूं दस के जाना है तो पक्का जे तुसीं चंगी तरह करके जाते हो तो 10 दे विचों 10 सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। पर जे दिलों पढ़ोगे। ठीक है जी गल। तो बाकी आपकी राय जिहड़ी कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस्सिओ भी सारे ये मैथड तुहाडा बहुत वधिया है। तो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। सारे जाने मेहनत करते रहो तो पढ़ते रहो।